चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल टेस्ट लिखा सब लोग ने, इट्स ओके, तुम लोग में है ना, वो इम्पोर्टेंट है। चलो चलो लेट अस टेक क्वेश्चन 4। आई थिंक फॉर्मेट क्वेश्चन 4 का रेडी है। डिड यू स्टार्ट सॉल्विंग? ठीक है, चलो ट्राई करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक यू शुड बी एबल टू गिव मी द वर्किंग एटलीस्ट। वर्किंग ट्राई करो, स्टार्ट करो। वी विल डिस्कस द वर्किंग नोट। ओके, आई एम रीडिंग ट्रांजैक्शन नंबर 1। यहाँ पे क्लियरली बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर BRS एज ऑन 31st March 2018। सो दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलरेडी मेंशन लास्ट टाइम कि आफ्टर दैट डेट जो भी हो रहा है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन 85,000 बट अ चेक ऑफ ₹60,000 was only cleared by bank before 31st March. So can you tell me out of 85,000 how much is uncommon? 25,000. Which book, which side? Cash book, debit side. Correct. Cash book, debit side, 25,000. This much is uncommon. Likewise, next one, out of checks issued ₹58,500, checks of ₹48,500 were not presented for payment before 31st March 2018. So हम ये जो 58,500 है उसमें से how much is uncommon? 48,500 itself is uncommon. बोलो which book, which side? Cash book, credit side, 48,500. Okay, next transaction. A bill of exchange for ₹4,000 is discounted with the bank. It was dishonored on 30th March 2018, but intimation of same was received on 5th April. So as of 31st March, which book will be having this entry? Passbook, which side? Debit side. बैंक आपके अकाउंट को डेबिट कर देगा because ये discounted bill dishonor हुआ है. Bank will debit your account with full amount. चलो next. Very simple. Interest allowed by bank. Interest allowed by bank मतलब क्या है ये? मतलब हमारे अकाउंट को बैंक ने क्या किया रहेगा? क्रेडिट किया रहेगा। अगर डेबिट किया रहेगा ना तो दे विल यूज द वर्ड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। सो चार्ज्ड एंड अलाउड में फर्क है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इज 820। दिस इज अपीयरिंग ट्वाइस इन द कैश बुक। ऑफ कोर्स इसमें से ओनली वन टाइम इज अनकॉमन। बोलो विच बुक, विच साइड? कैश बुक, डेबिट साइड कितना? 820। दैट इज करेक्ट। Okay, let us go for next one. Passbook debit side was overcast. मैंने कल ही कंक्लूड किया था अगर ओवरकास्ट रहेगा तो सेम साइड। और जो विच बुक इज ओवरकास्ट? पासबुक। दिस इज वेरी रेयर, वेरी रेयर। बैंक वाले लोग इतना मिस्टेक नहीं करते हैं, बट ठीक है, थियोरिटिकली दे आर गिविंग, सो वी आर डूइंग इट। चलो नेक्स्ट। चेक received from Akash deposited into bank for collection was not yet collected. The entry was recorded in the cash column of the cash book. Is this recorded in cash book? Is it recorded in cash book? मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। No, because when we speak cash book in this chapter, we are talking about bank column. So ये cash book में record नहीं किया है. Is this recorded in passbook? Passbook में भी record नहीं किया है because this was not yet collected. वो लोग नहीं आपको बोला है. So will this come or be part of our working note? No. So actually this is a common transaction. Cash book में भी नहीं है और passbook में भी नहीं है. We are not doing rectification of error. Do what is done. जो हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन। बिल्स पेबल अमाउंटिंग ₹8,700 पेड बाय द बैंक हैज नॉट येट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोलो विच बुक, विच साइड? पासबुक, डेबिट साइड, 8,700 एंड कैश बुक में तो एंट्री नहीं आया। एंड दिस वन वी डिड इन द लास्ट टाइम। Aditya directly deposited 17,000 in our account through NEFT. Bolo, this is which book, which side? Passbook, 17,000.
Okay, now read the first line. Tell me what is the starting point. Bank balance as per passbook. So again it is bank balance as per passbook and clearly आपको बोला है this is credit balance. So हमको पता है कि जो बैलेंस रहेगा उस साइड पे हम लोग एक एरो डाल देंगे and we will repeat the signs in the other book. Okay, let us prepare BRS because I want to prepare BRS of this question. So write down. We are preparing bank reconciliation statement as on 31st March 2018. So write down. Bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. Bank balance as per passbook. Outer column में 6,300. Okay, now यहाँ पे बहुत सारा ऐड है. So we will go number wise. 1 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 and 7. So we will first start with 1. Write down checks sent to bank for collection, not yet cleared. Yeah, not yet collected by the bank. Checks sent to bank for collection. Checks sent to bank for collection, not yet collected by the bank. Inner column 25,000. Okay, next one is directly the third one. So you can copy the same one. Bills of exchange discounted with the bank, dishonored, not yet recorded in cash book. Bill of exchange discounted with the bank, dishonored, bill of exchange discounted with the bank, dishonored. Not yet recorded in cash book. Inner column 4,000. Okay, so that is end of third one. Uske baad we are going to fourth one. So write down interest allowed by bank, wrongly recorded twice in cash book. Interest allowed by bank, wrongly recorded twice in cash book. Okay, next one. Next क्या है? Number 5. Passbook debit side overcast. Passbook debit side overcast 200. Inner column 200. Okay, that was number 5. उसके बाद सीधा number 7. Number 7 में you can copy the same bills payable paid by the bank has not been recorded in cash book. Bills payable paid by the bank not been recorded in cash book. ये सबका total outer column में लिखे जाओ. And then चलो ऐड का टोटल आउटर कॉलम में बताओ कितना होता है. 38,720 दोनों में ऐड का टोटल करो. 6,300 प्लस 38,720. Whatever is the total, write in the next line.
45020. Okay, next we will start with less. Next time less में number one, that is this transaction second and eighth. ठीक है, second, checks issued but not presented for payment. Checks issued but not presented for payment. Inner column 48,500. Last one, direct deposit by customer not recorded in cash book. चलो less का total मुझे outer column में चाहिए. What is the total of less? We started with 6,300. फिर add का total कितना था outer column में? 30, 38,720. What is the total of less in the outer column? 55, 65,500. Okay, now if you finally total, you can clearly see that the nature of balance has changed because ये negative आ रहा है. पहले मेरे को बताओ कितना है? Sorry, 20,480. First of all, cannot be in brackets. आप उसको negative नहीं लिख सकते. That is not correct way of presentation. Okay, and secondly, what is this 20,480? Bank overdraft as per cash book. या overdraft as per cash book भी लिख सकते हो. Bank overdraft as per cash book. ओके, अगर आपको नेगेटिव लिखना ही है, सपोज फॉर एग्जाम्पल सम आर सेइंग नो, हम लोग को नेगेटिव ही लिखना है आंसर, तो देन यू कैन नॉट राइट बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. आई स्टिल प्रेफर द फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर. Bank balance as per cash book. I would still prefer first way of writing the answer, not writing it in brackets and writing bank overdraft as per cash book. ठीक है, so this is quite possible. चलो, take question number 5. Question 5 is very similar to question number 1 that we did. क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग ने कल किया, वेयर आपको कैश बुक और पासबुक का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. कैश बुक एंड पासबुक का एक्सट्रैक्ट हमको कंपेयर करना है. ओके, नाउ इफ आई कंपेयर कैश बुक एंड पासबुक, डू यू रिमेंबर कि हम लोग विच आइटम्स को टिक मार्क कर देते हैं? पहले तो आप चेक करो in cash book what is the closing balance. कैश बुक जो आपको दिया हुआ है, what is the closing balance in cash book? 3,13,000. 3,13,000 is a closing balance. And what is the closing balance as per passbook? 81,600. So we have to reconcile which balance with which balance? 3,13,000 का बैलेंस हमको किससे रिकंसाइल करना पड़ेगा? 81,600. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का, आपको कैश बुक एंड पासबुक सेम मंथ का नहीं दिया गया है. दे हैव नॉट गिवन कैश बुक एंड पासबुक ऑफ द सेम मंथ. दे हैव गिवन यू कैश बुक for the month of March, but they have given you passbook for the month of April. तो अब ये सिचुएशन में सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन विच डेट. तो लास्ट लाइन में दिया हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड ऑन व्हाट? 31st March 2022. So what you do is
दोनों में से विच ऑफ द बुक इज फॉर द मंथ ऑफ मार्च? कैश बुक। तो सिर्फ कैश बुक को पकड़ के चलो। सो कैन यू टेल मी, कैश बुक जो आपको दिया हुआ है, यू कैन सी द डेट कॉलम ऑन बोथ द साइड्स। आप डेट कॉलम चेक करोगे तो दोनों साइड पे डेट कॉलम इज ऑफ मार्च, क्योंकि आप देखो सब मार्च का आपको डिटेल्स दिया हुआ है। नाउ अगर मुझे रिकंसाइल करना ही है, कैन यू टेल मी मार्च में एज पर कैश बुक हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? 3,13,000। इसको मैं किससे रिकंसाइल करूंगा? पासबुक का कौन से बैलेंस से? ओपनिंग बैलेंस से। हाउ मच इज द कैश बुक, सॉरी पासबुक का ओपनिंग बैलेंस? 3,65,000। ये दोनों को हम रिकंसाइल करने वाले हैं। अब कैसे रिकंसाइल करने का, दैट इज अवर नेक्स्ट स्टेप। सो नाउ लिसन केयरफुली, नाउ लिसन केयरफुली। हम लोग ने जब कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था, व्हेन वी डिड क्वेश्चन नंबर 1, आई टोल्ड यू दैट विच आइटम्स विल नॉट बी पार्ट ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? कॉमन आइटम्स के अनकॉमन? कॉमन आइटम्स, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर मंथ का हम लोग बना रहे थे, इनफैक्ट वी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी का कैश बुक में भी है और जनवरी का पासबुक में भी है, दैट इज कॉल्ड एज कॉमन आइटम्स। लेकिन अनकॉमन आइटम्स मतलब वो जनवरी के या तो कैश बुक में है बट पासबुक में नहीं है, या तो जनवरी के पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है। अब ये सिचुएशन में कैसे रिकंसाइल करने का? सो लिसन वेरी केयरफुली। I am starting with the debit side or the receipt side. So debit side पे you go with transactions which are given one by one. So बैंक कॉलम में लिखा है ये लोग ने 2 sales, बैंक कॉलम में लिखा है 2 sales 3 लाख। अब ये 2 sales 3 लाख जो है वो लोग ने मार्च में लिखा है। कैन यू चेक एंड टेल मी कि यार ये 3 लाख का पोस्टिंग नीचे पासबुक में आया है क्या? नहीं, लेकिन वो तो अप्रैल का पासबुक है। अगर वो अप्रैल के पासबुक में नहीं आया मतलब ये ऑलरेडी कौन से मंथ के पासबुक में आ गया रहेगा? मार्च। तो कैन यू टेल मी दिस 3 लाख विल फॉर्म पार्ट ऑफ बीआरएस और विल नॉट फॉर्म पार्ट? नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बीआरएस। लाइक फॉर एग्जांपल, कैन यू चेक कैश बुक के डेबिट साइड पे लिखा है 2 राम 65,000। व्हाट इज दिस एंट्री फॉर 2 राम 65,000? चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। कैन यू टेल मी राम से हमको चेक मिला है, वो हमने कौन से डेट को डिपॉजिट किया है? 10th ऑफ मार्च। यस और नो? अब वो नीचे अप्रैल के पासबुक में आया है क्या? उसका मतलब क्या? ये चेक कब कलेक्ट हो गया रहेगा? मार्च में ही कलेक्ट हो गया रहेगा। यस और नो? ओके, लाइकवाइज टू राइट डाउन नेक्स्ट वन, टू सिंगल। तो सिंगल का अकाउंट कितना है? 2,70,000। ये भी चेक हमको कौन से मंथ में मिला है? मार्च। डिपॉजिट कौन से डेट को किया है? अरे डेट पूछ रहा हूं, 18th को डिपॉजिट किया है। इज दिस चेक ऑलरेडी कलेक्टेड इन मार्च? आपको कैसे पता चला ये मार्च में कलेक्ट हो गया है? क्योंकि अप्रैल के पासबुक में नहीं आया है। इनफैक्ट यू विल अंडरस्टैंड इफ आई डिस्कस गोयल एंड पटेल का। तो गोयल का चेक देखो आप 33,000। कैन यू टेल मी गोयल से चेक हमको जो मिला है वो हमने डिपॉजिट कब किया है? 25th मार्च। लेकिन ये क्लियर कब हुआ है? फर्स्ट, इट इज क्लियर्ड इन अप्रैल। यस और नो? That means it was not cleared in. So will this come in BRS? Matlab, now I want to conclude. See, this is my conclusion table. When extract of cash book and passbook is given, extract of cash book and passbook मतलब ये बोलते हैं ये cash book का extract है, ये passbook का extract है। In that case, पहले तो आपको चेक करना है कि is cash book and passbook for the common period or is it for the अनकॉमन पीरियड। सो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 कल सॉल्व किया था, दैट क्वेश्चन नंबर 1, अब चाहिए तो यहां पे लिख सकते हो रेफर क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में कैश बुक एंड पासबुक बोथ वर फॉर कॉमन पीरियड, एंड इफ कैश बुक पासबुक वर बोथ फॉर द कॉमन पीरियड, विच ट्रांजैक्शंस विल अपीयर इन बीआरएस? अनकॉमन ट्रांजैक्शन। लेकिन when cash book and passbook is coming for uncommon period, which is right now we are solving, that is refer question 5. इसमें cash book and passbook are for uncommon period. So which transactions will come in bank reconciliation statement? Common transaction. Like you can see here, गोयल एंड पटेल। तो ये चेक्स जो हम लोग को मिला है वो हम लोग ने
डिपॉजिट किया है ऑन 25th and 31st March respectively, but these checks were not cleared in the month of March. These checks have been cleared in the month of April, which is the proof because April का हमको पासबुक दिया हुआ है. So these checks were collected and deposited in March but not yet cleared till 31st March. Okay, likewise, can you check on the credit side of cash book? Which checks were issued in March but not yet presented for payment up to 31st March? एक रमेश का चेक है. इज देयर एनी अदर चेक? नो. सो ये 3 डॉट जो हम लोग ने किया है, these are common transactions and these are the only transactions which will come in BRS. बाकी सब अनकॉमन ट्रांजैक्शन है, वो BRS में नहीं आएगा. ओके, सो लेट अस प्रिपेयर फॉर्मेट. एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का हमको फॉर्मेट चाहिए, बट ओनली फॉर 6 to 8 लाइन्स. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट डाउन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2018. फिर एक BRS का टेबल बनाओ, ओनली फॉर मैक्सिमम 8 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि 3 ही तो ट्रांजैक्शन है. और उसके नीचे कैश बुक पासबुक वाला स्टैंडर्ड वर्किंग बनाओ, हमारा standard table or working note. Okay, now as we normally do it, what we will do is हम लोग पहले working note में लिख देंगे. Write down cash book debit side में, go to working, same date, you can write date. मतलब ये यहाँ पे जो हम एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप का कॉलम बनाते हैं, वहाँ पे you can write 25th March 2022. Then amount column में 33,000. Likewise, next date is 31st March 2022, 65,000. And cash book के credit side पे date लिखो 24th March 2022, 1,50,000. That's it. नीचे passbook के working में कुछ नहीं आएगा. Okay, we will start with balance as per cash book. Can you tell me ये 3,13,000 is which balance as per cash book? Debit balance. तो कैश बुक के डेबिट साइड पे एरो आएगा, कैश बुक डेबिट साइड पे एरो आएगा, जो साइड पे एरो आया उसको माइनस साइन रखो, एंड क्रेडिट साइड पे प्लस साइन हो जाएगा. पासबुक में भी सेम साइंस डाल दो. सो क्या 31st March होना चाहिए. एक्चुअली इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, वो लोग ने 30th ही लिखा है, 31st होना चाहिए, करेक्ट. चलो गो टू BRS. BRS में लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. BRS में लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. $3,13,313. नेक्स्ट लाइन ऐड में लिखो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नेक्स्ट लाइन में इनफैक्ट इसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन लिखो रमेश. आउटर कॉलम डायरेक्टली 1,50,000 बिकॉज एक ही है. ऐड में ऐड करो इसको. 3,13,000 प्लस 1,50,000 इज 4,63,000. देन नेक्स्ट लाइन लेस में भी एक ही है. चेक्स ट्रांजैक्शन एक ही है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड. उसको अंडरलाइन करके गोयल एंड पटेल ये दोनों का नाम लिख दो. इनर कॉलम में फिगर्स आएगा 3365
33 plus 65, 98. सब्ट्रैक्ट करो 4,63,000 में से 98,000. Are you getting 3,65,000? That is bank balance as per passbook. Both are regular balance, bank balance as per passbook. ये सेम क्वेश्चन आएगा तो 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा ऑब्वियसली. 3 कितना देगा भी इसका? मैं तो वर्किंग नोट भी ना बनाऊं इसके लिए. चलो चलो, डोंट वेस्ट टाइम. टेक क्वेश्चन नंबर 6, 7. वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे. चलो. Question number 6. I am reading only first line. On 30th November 2018, cash book of Mr. Hari showed an overdrawn position of 4480. Overdrawn position, that means this is which balance as per cash book? Overdraft as per cash book. हम लोग ने पढ़ा था nature of balance. So nature of balance में there is 2 types of balance. We are now speaking about overdraft. So कभी कभी ये लोग क्या लिखेंगे? Unfavorable balance as per cash book, or they will also write which balance as per cash book. हाँ, तो लेकिन अकाउंटिंग सेंस में हमको पता होना चाहिए अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब इट इज विच बैलेंस एज पर कैश बुक. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक. क्योंकि आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो आपको एरो डालने के लिए ये पता होना चाहिए कि इट इज विच बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. सो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक? डेबिट बैलेंस. एनीवेज, ये सब हम लोग जब एरो लिखेंगे तब हमको ये काम आएगा. राइट नाउ यू कैन सी इन द फर्स्ट पैराग्राफ they have given you balance as per both the books. They have given you that cash book is showing an overdrawn position of 4480, but bank statement is showing only 3,200 overdrawn. दोनों overdraft है. Okay, nothing changes. Same structure of BRS, same 2 working notes. Directly जब arrow पे आएंगे तब हम सोचेंगे क्या करना है. तब तक सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने पहले ही बोला, डू व्हाट इज डन. सो पहले बीआरएस का फॉर्मेट, उसके नीचे 2 वर्किंग नोट. चलो चलो, बी फास्ट. प्रिपेयर फॉर्मेट नहीं, ओनली 1. वो तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में वी हैड टू प्रैक्टिस एज पर बोथ. इसके लिए हम लोग ने किया था, वो हम बात करेंगे पहले. उसके लिए दैट डज नॉट कम इन बिटवीन ऑफ अवर वर्किंग नोट. वर्किंग नोट तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग. चलो, प्रिपेयर वर्किंग नोट ऑन योर ओन. जितना होता है उतना ट्रांजैक्शंस खुद से बनाओ. वर्किंग नोट प्रिपेयर करने का ट्राई करो. देर आर टोटल आई थिंक 9 ट्रांजैक्शंस. ऑल आर रूटीन ट्रांजैक्शंस. मेरे लिए अगर कुछ है डिफरेंट तो नंबर 4 ही है, वो भी मैंने कल पढ़ा दिया है. वी हैव स्टडीड दिस 4th वन. वर्किंग नोट खुद से ट्राई करो. वर्किंग्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6. चलो फटाफट. डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 400. अंडरकास्ट मीन्स विच साइड? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट. इफ इट इज अंडरकास्ट तो ये कौन से साइड पे आएगा? ऑपोजिट साइड. दैट इज 400. ओके, चलो नेक्स्ट. चेक फॉर ₹1600 in favor of Y Suppliers Limited was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer's account. Bolo, which book, which side? Cash book, which side? Credit side. That is definitely there. But which statement में इसका entry नहीं आया? Bank statement या passbook में entry नहीं है. Okay. Next one. Check for ₹172 is drawn for payment of telephone bill. Was recorded in cash book as 127. But it was shown correctly in the bank statement. See, cash book में कितना record किया है?
127. कैश बुक में it must have been recorded on which side? Credit side. How much? But passbook में it has come on which side? How much? 172. So 172 का ब्रेकअप क्या है? 127 and इसमें से कॉमन क्या है? So what is uncommon? So that will come on which book, which side? Passbook, which side? Debit side. 45. Okay, next one. Next one I discussed yesterday. Check of rupees 425 from Mr. Pal paid into bank was dishonored and it is shown as such on the bank statement, although no entry relating to dishonored check was made in cash book. Tell me which book, which side? पासबुक, डेबिट साइड. ये डिस्कस मैंने किया था कल, दैट बैंक एक बार के लिए आपके अकाउंट को क्या कर देता है? क्रेडिट. और फिर डिसऑनर करेगा तो बैंक उसको रिवर्स करता है, लेकिन डिसऑनर को हमने रिवर्स नहीं किया है. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज विच बुक, विच साइड? पासबुक, डेबिट साइड 425. चलो नेक्स्ट. ऑल थिंग्स आर वेरी रूटीन. फिफ्थ वन, बैंक debited a check of rupees 150 to Mr. Hari's account by mistake. इसमें आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं. It is debited मतलब it is which book, which side? पासबुक, डेबिट साइड. हम लोग के अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है by rupees 150. However, bank should have not debited to our account. It is some other accounts. चलो next. Next 4 are routine transaction. Dividend of 100 was collected by the bank but not entered in cash book. बोलो which book, which side? Passbook, credit side. Next, check were drawn but not presented for payment. Which book, which side? Cash book, credit side 1300. Next one, check for rupees 1200 were deposited but not yet credited by the bank. Which book, which side? Cash book, debit side. How much? 1200. And then there are few payments which are made by the bank. In fact, only one. Interest of 300 was debited by bank. Debited by bank means, chalo, write down. Bank reconciliation statement as on. Prepare bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement, be fast. Write down. Bank reconciliation statement as on 30th November 2018. Bank reconciliation statement as on 30th November 2018. Next slide. Chalo, we will start with which balance as per which book. नहीं, बैंक बैलेंस नहीं लिख सकते आप लोग. ओवरड्राफ्ट एज पर. अभी आप दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन स्टार्ट विथ कैश बुक ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विथ पासबुक ऑल्सो. अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस जो किए उसमें हम लोग ने पासबुक से स्टार्ट किया है. सो आई एम स्टार्टिंग विथ कैश बुक इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो राइट डाउन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लास्ट के रुपीस के कॉलम में 4480. 4480. Next line, add. अच्छा, add less कैसे डिसाइड करने का? भी we have started with which balance as per which book? Overdraft as per cash book. Overdraft मतलब which balance? Credit balance. तो credit balance मतलब credit साइड पे एरो आएगा. तो जो साइड पे एरो आया वो साइड पे माइनस साइन, ऑपोजिट साइड प्लस साइन, सेम साइड सेम साइंस रिपीट करो पासबुक में. सो यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग डिफरेंटली फॉर ओवरड्राफ्ट. वही रूल अप्लाई होता है जो हम लोग ने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में अप्लाई किया है.
ओनली थिंग यू शुड नो इज यू आर स्टार्टिंग विथ विच बैलेंस. सो अगर ये पासबुक सॉरी कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, सो इट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक. ओके, सो एड आइटम्स में आप देख सकते हो पूरे डेबिट साइड को हम लोग को ऐड करना है. सो वी विल गो फ्रॉम और बाय नंबरिंग. सो इट इज 3, 4, 5, 8 and 9. So let's start with the third one. Add में लिखो number 1. Check drawn for payment of. Check drawn for payment of telephone bill. Wrongly recorded or wrong amount rather, wrong amount recorded in cash book. Wrong amount recorded in cash book. Inner column में 45 sorry 45 yes. Third one में 45 है. After third I am going for fourth one. Check dishonored. Check dishonored and shown as such. Check dishonored and shown as such. On the bank statement, but not recorded in cash book. But not recorded in cash book. Inner column 425. Next line number 3. Wrong debit. Wrong debit in passbook. Wrong debit in passbook. Wrong debit in passbook. 150 inner column. Fifth के बाद next is 8. So next is number 4. Check deposited but not credited by the bank. Check deposited but not credited by the bank. Inner column में 1200 and last one is 300. Interest debited by bank but not yet recorded in cash book. चलो ऐड दैट इज 300. ऐड का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. 3, 4, 5, 8, 9. चलो बी फास्ट. आउटर कॉलम में ऐड का टोटल बोलो कितना था. ये ऐड का टोटल है
2120, फिर आउटर कॉलम का टोटल करो 6600, ओके 6600. नेक्स्ट लाइन लेस में नंबर 1, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, $400 inner column. Next line, check issued and presented for payment, check issued and presented for payment but omitted by bank from the bank statement, yeah, from the passbook. Check issued and presented for payment but omitted by bank from the passbook. Inner column 1600, 1 2 6 and 7, 6. Okay, number 3, dividend collected by bank but not entered in cash book, dividend collected by bank but not entered in cash book. $100. Next, number 7, or other number less में number 4, checks issued but not presented for payment, check issued but not presented for payment. लेस का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ ब्रैकेट में, आउटर कॉलम का सबट्रैक्ट करो, आउटर कॉलम लेस का टोटल इन द आउटर कॉलम विल बी 3400, उसको आउटर कॉलम 6600 में से माइनस करो 3200. व्हाट इज द आंसर यू विल राइट इन फ्रंट ऑफ 3200? ये क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. इनफैक्ट दैट इज गिवन इन द फर्स्ट पैराग्राफ. आप फर्स्ट पैराग्राफ में वेरीफाई कर सकते हो, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको दिया हुआ है. पासबुक का ओवरड्रॉन बैलेंस वाज 3200. Okay, take question 7. Question 7. Again, be ready with the format. BRS का फॉर्मेट एंड नीचे 2 वर्किंग नोट.
मोस्टली आप बना ही दो पूरे पेज का, क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है एंड थोड़ा स्टेटमेंट्स भी बड़ा रहेगा. यू कैन चलो, let us start. Come to page number 37. We are starting with question number 7. I am reading question 7. Bank passbook of account number 5678. Account number 5678 of Mrs. Rani showed overdraft of 33,575 on 31st March 2018. Now here they have purposely given you the account number. वो क्यों account number दिया है we will see when we go to the fifth one, but right now whatever is the account number उसका bank passbook. So again you can see they have given you the balance as per passbook as 33,575, but this is which balance? Overdraft balance as per passbook दिया है. Okay, now we have been given the following transactions. Of course, what we will have to do is we will have to put this into our working note. So I am reading the first one. A check of rupees 1080 credited in the passbook on 20th March 2018 being dishonored is debited again in the passbook on 1st April. There was no entry in the cash book about dishonor of the check till 15th April 2018. And you can clearly see first paragraph mein we are supposed to prepare the bank reconciliation statement as on 31st March 2018. चलो first का क्या करने का and why, which book, which side. अच्छा, दोनों बुक में कुछ भी नहीं आएगा. अरे मैं क्या लिखूं वर्किंग नोट में वो बताओ, मुझे समझाओ कि कौन से बुक में आएगा, कौन से साइड में आएगा. कुछ भी नहीं आएगा. ओके, तो ये बोल रहा है ये ना ही कैश बुक ना ही पासबुक, ये आएगा ही नहीं. पासबुक के क्रेडिट साइड में आएगा, मतलब कैश बुक में कुछ नहीं आया. कैन यू एक्सप्लेन व्हाई कैश बुक में नहीं आया? मतलब बैंक अपने आप से आपको क्रेडिट दे देगा. बैंक आपको क्रेडिट कब देगा? अरे बेटा ये डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं है. चेक इज क्रेडिटेड इन द पासबुक, मतलब आपने चेक को डिपॉजिट करेगा तभी तो चेक इज क्रेडिटेड बाय द पास. पहले आप स्टेप नंबर 1 बोलोगे. मैंने कल आपको ये पूरा स्टेप समझाया. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? यू रिसीव द चेक एंड डिपॉजिट. आप जब रिसीव करके डिपॉजिट करोगे तो पहले कौन से बुक में आएगा? कैश बुक में. विच साइड? कैश बुक डेबिट साइड 1080. डू यू एग्री विद दिस? डोंट राइट. अच्छा, डिड बैंक गिव यू क्रेडिट फॉर दिस डिपॉजिट? यस. बैंक हैज रिटन ऑन विच बुक, विच साइड? पासबुक क्रेडिट साइड. तो ये कॉमन है कि अनकॉमन है? कॉमन है. अब ये क्या हो गया है? डिसऑनर. हैज बैंक डेबिटेड और अकाउंट? हाँ, बैंक हैज डेबिटेड और अकाउंट. बट व्हेन हैज बैंक डेबिटेड? मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी 31 मार्च के बियॉन्ड होता है दैट इज डेट ऑफ बीआरएस के बियॉन्ड, वो हमारे लेना देना नहीं है. सो 31 मार्च तक बैंक ने डिसऑनर का एंट्री पास किया है? नहीं. हमने एंट्री पास किया है? नहीं. तो ये कॉमन ट्रांजैक्शन है, ये आएगा ही नहीं बीआरएस में. इंस्टीट्यूट क्वेश्चन, जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन डालेंगे वो लोग. ठीक है. नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. और अगर ये ट्रांजैक्शन आपके वर्किंग में नहीं आएगा ना तो आप अपने आप को एग्जाम में 10 बार पूछोगे मैं सही कर रहा हूं ना, ये मैं इसको छोड़ने जा रहा हूं, ये किधर आने वाला तो नहीं है ना. 10 बार आप खुद से कंफर्म करोगे. एनीवेज, नंबर 2 इज वेरी सिंपल. बैंकर हैज क्रेडिटेड हर अकाउंट for rupees 2,800 interest collected by them. चलो, this will be book which side? पासबुक. वही पासबुक which side? अरे लिखा है उधर इंटरेस्ट क्रेडिटेड, फिर भी डेबिट बोल रहा है. पासबुक क्रेडिट साइड 2,800. चलो नेक्स्ट वन. आउट ऑफ रुपीज 20,000
500 paid in by Mrs. Rani in cash and by check on 31st March. Checks amounting to 7,500 were collected on 7th April. So ये 20,500 में how much is uncommon? 7,500. What is breakup of 2,500? हाँ तो 13,000 का checks were when collected? On or before 31st March. खाली उसमें से 7,500 का checks were collected on 7th April. So up to 31st March तो ये collect नहीं हुआ है. तो बोलो which book which side? Cash book debit side. Cash book debit side. क्या हुआ? पेड. अरे खाली पेड मत पढ़ो, आगे भी पढ़ो. पेड इन बाय अस. कहां पे पेड इन किया है? एंड आप आगे भी पढ़ो ना. चेक्स वर कलेक्टेड, दे वर नॉट रिटर्न प्रेजेंटेड. सी द वर्ड्स दैट दे हैव रिटन, इज कलेक्टेड. अब आप जो बोल रहे हो ना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है. जब भी चेक डिपॉजिटेड रहेगा ना तो जनरली वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं, पेड इन. और जब भी चेक्स इशूड किया रहेगा ना तो वो लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, आप देख सकते हो. व्हाट इज द वर्डिंग्स दैट दे विल यूज इज ड्रॉन बाय हर. हम चेक ड्रॉ करेंगे, वी विल राइट अ चेक. वी डोंट राइट, वी डोंट से वी हमने चेक राइट किया या लिखा. इट इज ड्रॉन बाय अस. ओके, सो कैन यू टेल मी फोर्थ ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे हम लोग? आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू 7,800 drawn by her on 27th March 2018, check of 2,500 was encashed. Encashed is another word that is for presented. So ये 7,800 में से how much is uncommon? 2,000. अरे uncommon कितना है? Uncommon नहीं, which part is uncommon? Can you tell me? Those which are presented after 31st March के before 31st March? After. तो जो after 31st March है that is uncommon transaction. So बोलो which book which side? अरे चेक ड्रॉन बाय हर मतलब क्या? चेक ड्रॉन बाय हर मतलब इशूड के डिपॉजिटेड. इशूड किसने इशू किया है? हम लोग ने इशू किया है. तो विच बुक विच साइड? कैश बुक विच साइड? क्रेडिट साइड. कितना? हाउ मच इज कैश बुक क्रेडिट साइड? 2,500. ओके, फिफ्थ का बोलो क्या करने का? एनीबडी? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक इट इजी फॉर यू. ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है जो वो लोग ने मिक्स किया है. सो आई एम पुटिंग अ क्लियर लाइन हियर. तो पहले आप बोलो, मैंने लाइन मारा ना उधर तक ही पढ़ो एंड बोलो विच बुक विच साइड. कैन यू टेल मी? वो लोग ने लिखा है बैंकर हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट. लिख ही दिया है वो लोग ने, बैंकर हैज गिवन रॉन्ग क्रेडिट. तो बैंकर मस्ट हैव गिवन क्रेडिट इन विच बुक? पासबुक ऑफ ₹500. ये आगे का मतलब क्या है? पेड इन बाय हर इन अकाउंट नंबर 8765. व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? पेड इन बाय हर in account number 8765. Can you explain this phrase? Pay मतलब क्या किया उसने? Correct. She has deposited 500 in which account? 8765 account number में मैंने डिपॉजिट किया है. So we have deposited 500 in 8765. Do you agree with this statement? तो बैंक will write it on which side? अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो पासबुक क्रेडिट साइड. तो रॉन्ग क्रेडिट क्यों लिखा है? बराबर तो किया है उसने, क्यों अपने में नहीं है? लिखा है ना बाय हर, मतलब ये हमारा ही है. तो सेम ही तो है. अकाउंट नंबर दिया है ना हमको, अकाउंट नंबर. अरे अकाउंट नंबर उल्टा नहीं है, अकाउंट नंबर अलग है.
वहां पे अकाउंट नंबर, हम लोग कौन से अकाउंट नंबर का बीआरएस बना रहे हैं? 5678। तो वही मिसिस रानी का उसी बैंक में दूसरा अकाउंट भी हो सकता है. So there may be, say for example, I don't know, there may be a saving account, there may be a current account. तो उसने 500 रुपया डिपॉजिट किया इन 5678, तो बैंक ने उसको गलती से उसी के दूसरे अकाउंट में क्रेडिट में डाल दिया. और rather she has paid 500, sorry, not in 5678, she has paid 500 in 8765. तो बैंक ने गलती से इस अकाउंट में जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं उसमें क्रेडिट में दे दिया है. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिस विल कम इन विच बुक, विच साइड? पासबुक क्रेडिट साइड. सिमिलरली यू कैन सी फर्दर ट्रांजैक्शन, वो लोग ने लिख ही दिया है रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक फॉर ₹300 अगेंस्ट हर अकाउंट 8765. सो ये दोनों में कॉमन क्या है? दोनों ट्रांजैक्शन हैज बीन डन इन अकाउंट नंबर 8765, बट दोनों ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बैंक हैज गिवन इन 5678. तो 5678 में ये 300 का क्या दिख रहा है पासबुक में? डेबिट. आई थिंक यहां पे मैंने 500 मिस्टेक है, 500 का रॉन्ग क्रेडिट दिख रहा है एंड 300 का रॉन्ग डेबिट दिख रहा है. व्हाट यू डू इज, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो फॉर योर रेफरेंस, अकाउंट नंबर 5678. आई रिपीट, जो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है वो दोनों ट्रांजैक्शन मिसिस रानी ने उसके दूसरे अकाउंट में किया है 8765, बट उसका गलती से बैंक ने अकाउंट नंबर 5678 में इफेक्ट्स दिया है. Okay, now last 4 transactions, checks for ₹1,000 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March 2018. So बोलो which book, which side? लिखा ही है it is entered in cash book, but question is ये चेक जो हम लोग ने ₹1000 का एंटर किया है कौन से साइड पे एंटर किया है? कैसे पता चला डेबिट साइड पे? टू बी बैंक्ड. सो टू बी बैंक्ड इज अनदर वर्ड फॉर व्हाट? डिपॉजिटेड. सो हम लोग ने कैश बुक में एंटर कर दिया. ऑफ कोर्स नीडलेस टू से that because they have written the word cash book, it is understood they must have recorded this in which column? बैंक कॉलम. लेकिन उसको डिपॉजिट करना हम भूल गए, बट कैश बुक में एंट्री कर दिया है. सो दैट इज अवर 6th ट्रांजैक्शन. $1000. ओके, नेक्स्ट. A bill receivable for ₹5,200 previously discounted, discount was ₹200, with the bank had been dishonored, but advice was received on 1st April 2018. बोलो which book, which side and why? पासबुक में डेबिट साइड, लेकिन उसका लिखा है ना एडवाइस वाज डन ऑन 1st April. हमको 1st April को पता चला है, लेकिन बैंक ने तो हमारे अकाउंट को क्या किया रहेगा? डेबिट कर दिया रहेगा. My question is, bank must have debited our account by how much? 5,000. क्यों 5,000 ना? 200 रुपया डिस्काउंट. फुल अमाउंट 5,200 बैंक हमारे अकाउंट से डेबिट करेगा. चलो नंबर 8. A bill for ₹10,000 was retired or paid by the bank under rebate of 175, but full amount of bill was credited in bank column of the cash book. See, मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट पास करता हूं. इफ यू डू what is done, you cannot go in
और रॉन्ग इन द वर्किंग नोट. सिंपल है, जो लोग ने बोला है उसको आप करो. सो डू व्हाट इज डन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिल ऑफ 10,000 वाज रिटायर्ड और पेड बाय द बैंक. बैंक ने हमारे विकास पे पेमेंट कर दिया है एट अ रिबेट ऑफ 175. तो कैन यू टेल मी विच बुक, विच साइड, हाउ मच. पासबुक डेबिट साइड, हाउ मच. अच्छा, बाय द वे ये बिल रिसीवेबल होगा कि बिल पेएबल होगा. पेएबल. मेरे साइड से बैंक ने रिटायर कर दिया. जब वो रिटायर कर रहा है तो मैंने बैंक को क्या बोला रहेगा कि आप कितने का पेमेंट करो. 9825. सो डोंट राइट सी हियर. कैन यू से दैट बैंक के पासबुक में 9825 आया है, बट बाय मिस्टेक हमने पहले तो वो लोग कैश बुक में रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है. विच साइड, हाउ मच, 10,000. अब ये पूरे ट्रांजैक्शन में कैन यू टेल मी हाउ मच इज कॉमन आइटम. 9825. सो हाउ मच इज अनकॉमन. 175. विच बुक, विच साइड, 175. चलो नंबर 9 बताओ क्या करने का. Check for rupees 2,400 is deposited into bank, but it is omitted to be recorded in cash book, but it was collected by the bank on 31st March 2018. Will it come in cash book? क्यों no? लिखा है it was omitted to be recorded. But is this check cleared or collected by the bank? Yes, on or before 31st March. तो ये which book, which side? Passbook. Sorry, passbook credit side. $2,400. Chalo, write down. Come to your main bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as on 31st March 2018. उसमें लिखो ऐड. अच्छा, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट वी हैव टू राइट द फर्स्ट लाइन. अगर BRS रेडी है तो बोलो. इट इज विच बैलेंस एज पर विच बुक इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. सो राइट डाउन ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब विच बैलेंस एज पर पासबुक होता है, डेबिट बैलेंस. सो गो टू पासबुक का डेबिट बैलेंस. तो पासबुक के डेबिट साइड पे एरो डालो. जो साइड पे एरो आएगा दैट इज माइनस. सो ऑपोजिट साइड विल बी प्लस. सो दोनों बुक का क्रेडिट साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, एंड दोनों बुक का डेबिट साइड हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ ऐड आइटम्स. ऐड में लिखो नंबर 1 इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक और क्रेडिटेड बाय बैंक. इंटरेस्ट कलेक्टेड स्लैश क्रेडिटेड, बोथ द वर्ड्स आर करेक्ट. इंटरेस्ट कलेक्टेड और credited by bank, not yet recorded in cash book. Not yet recorded in cash book. Interest collected or credited by bank, not yet credited in cash book. Inner column 2800. Next, checks issued but not presented for payment. Check issued but not
presented for payment. Inner column 2500. नेक्स्ट 4 के बाद 5 है, 5 में दो है, एक 500 रुपीज वाला और 300 रुपीज वाला. सो ये 500 रुपीज वाले के लिए हम लोग कर रहे हैं. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. In account number 5678 for amount deposited in account number 8765. ये दो मैंने डिटेल में लिखा है. आप लोग एग्जाम में सिर्फ इतना लिखोगे तो चलेगा, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक. दैट्स इट. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक in account number 5678 for amount deposited in account number 8765. Inner column 500. Okay, next transaction is straight away the 8th one. Bill retired by bank, bill retired by bank under a rebate, bill retired by bank under a rebate, but full amount of bill credited in cash book. Full amount of bill credited in cash book. $175. And I think 9th one, check deposited into bank, check deposited into bank and collected by the bank, check deposited into the bank and collected by the bank, but omitted to be recorded in cash book, but omitted to be recorded in cash book. I think
इनर कॉलम 2400, ये सबको ऐड करो. What is the total for add items in the outer column? 8375. Okay. Outer column का total करो. 33575 plus 8375. 41950. 41950. Next line less. Next line less. Less में number 1, checks paid into bank. Checks paid into bank. But not yet collected. Checks paid into bank but not yet collected. Inner column 7500. चलो नेक्स्ट इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं. नंबर 2, रॉन्ग डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक against account number 8765. Wrong debit in respect of check against account number 8765. $300 inner column. Next 6th वाला है. Write down. Check entered in cash book but omitted to be banked. Check omitted. Sorry, check entered in cash book but omitted to be banked. 1000. Check entered in cash book but omitted to be banked. भाई एग्जाम में नया लेके जाना भाई, अचानक दगा दे देगा वो. 5 कैलकुलेटर लेके जाने का. अब 5 नहीं तो 3 तो लेके ही जाना कैलकुलेटर. हाँ भाई, कभी एक बार बंद हो गया तो दूसरा काम आएगा. देन जस्ट फॉर सेफ्टी, एनीबडी एल्स, किसी का अगर बंद हो गया तो जस्ट फॉर हेल्प लेके जाने का एक्स्ट्रा. बहुत जन ऐसे एड़े होते हैं जो कैलकुलेटर में एग्जाम में कैलकुलेटर लेके आने का भूल जाते हैं. यस, वी हैव सच केसेस. फिर बाद में घर पे फ़ोन करेंगे, घर वाले आएंगे देने को, सेंटर में घुसने, बहुत लफड़ा होता है. सो प्लीज़ अपना दिमागी संतुलन एग्जाम के टाइम पे बनाए रखना. डोंट लूज योर माइंड. इट इज़ अ नॉर्मल एग्जाम. देखो नॉर्मल ये चेकलिस्ट बना लेने का, क्या क्या हम लेके जा रहे हैं. कैलकुलेटर नहीं लेके जाएंगे, हॉल टिकट भूल गया. देर आर इंस्टेंसेस ऑफ सच स्टूपिड केसेस वेयर क्या करने का. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर, आई थिंक इट इज 3 कि 4. बिल रिसीवेबल discounted with the bank, dishonored. Bill receivable discounted with the bank, dishonored. Not recorded in cash book.
Bills receivable discounted with the bank, dishonored, not recorded in cash book. 5,200. लेस का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ. व्हाट इज लेस का टोटल इन द आउटर कॉलम? 14,000. आउटर कॉलम माइनस करो 27,950. ओके, 27,950 के सामने व्हाट विल यू राइट? दिस इज व्हाट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक. बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट एरिया, तुम लोग का कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? वो ग्रुप आप चेक करोगे. बहुत सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, बाकी सब चैट्स बाद में चेक करो. यू कैन चेक एवरीथिंग एल्स आफ्टरवर्ड्स. हाँ, क्या 3 PDF फाइल्स आया है वहाँ पे? हाँ, तो बहुत जन जैसे मेरे पास से उधारी मांग रहे हैं वैसे रोज मैसेज डाल रहे हैं. तो अभी फाइनली हम लोग ने डाल दिया है. आप 2 दिन में दोनों चैप्टर सॉल्व करके भेजना. अभी फ्री हो ना 1:30 के बाद? तो 1:30 के बाद फ्री हो ना तुम लोग? प्रीतेश सर ने क्या दिया है? तो मैं भी दे रहा हूं. अब आप डिसाइड करो कि रात को जागना है पहले से. हाँ, तो मैं और दे रहा हूं एडिशनल. तो रात को सोना नहीं, सिंपल है. ठीक है, तुमको जब टाइम मिले. तुम लोग मत करो प्लीज, नहीं तो अभी चालू करोगे बाद में शाम को मैसेज डालोगे होमवर्क का सॉल्यूशंस भेजो. मतलब तुमने ऐसा मेरे को नौकरी पे रखा है, ऐसा तुम लोग मेरे से मांग रहे क्या? अरे अभी वो फाइल फाइनल करके मैडम ने मेरे को भेजा और तुरंत मैंने आपको भेजा है. ये सब रियल टाइम हो रहा है. उन्होंने मेरे को दिया, मैंने तो फाइल देखा भी नहीं है, ऐसे ही भेज दिया है उनके पे भरोसे पे. सो ये हम लोग ने आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में टोटल कितने सम्स हैं होमवर्क में? PDF देखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स डाले हैं हम लोग ने. 12 क्वेश्चंस. ओके, हाँ बोलो. क्या था? मेरे को सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोला? वो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है ना? हाँ, तो मैं उसका सोल्यूशन भेज रहा हूँ आपको. हो गया ना? तो फिर क्या है? अच्छा हो गया. ये मेरे को सुना रही है लेकिन ये नहीं बोल रही है कि मैंने वो मैसेज में वापस रिप्लाई नहीं किया कि माय डाउट गॉट सॉल्व, थैंक यू फॉर नॉट रिप्लाइंग. कैसे लोग हैं? अभी मेरे को सुना रही है इधर कि आपने डाउट सॉल्व नहीं. हाँ, चैप्टर का नाम याद नहीं है. गुड. मैं उसका सोल्यूशन ग्रुप पे डाल दूंगा. मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, मैं वही बोल रहा हूँ. मैंने सोल्यूशन अभी ग्रुप पे डाल दूंगा. अभी क्या मैं लिख के भेजूं? ओके. क्या हुआ?
अरे लेकिन मैंने क्वेश्चन 18 का सोल्यूशन डाला तो है। क्वेश्चन 18 का सोल्यूशन नहीं डाला है। अरे 17 के नीचे ही 18 का सोल्यूशन है, चेक करो आप लोग यार। जो पेज पे 17 है उसी के नीचे 18 है शायद से, चेक करो आप लोग प्लीज, एक बार मेरे लिए वो पीडीएफ चेक करो। हाँ बोल। अरे मॉड्यूल में तो कैश बुक में नीचे नरेशन भी नहीं है, वो देखा तूने? हाँ तो उसमें नरेशन भी नहीं है। एग्जाम में भी कैश बुक का समय है, उसके अंदर नरेशन नहीं है, बट दैट डजंट मीन यू डोंट डू इट। कोई दिखाएगा मेरे को वो पीडीएफ प्लीज? आराम से, किधर? आई नो। अरे मैंने डाला है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 17 के बाद 18, ठीक है। अरे क्वेश्चन 18 का आपको सोल्यूशन क्यों चाहिए? क्वेश्चन 18 का बैलेंस शीट टैली हो गया तो सही रहेगा। वो हुआ तेरा टैली? देखो उसका टैली हुआ, उसके पास से सोल्यूशन ले लो क्वेश्चन 18। हाँ तो फिर क्या के लिए सोल्यूशन चाहिए? राइट अमाउंट पे टैली हुआ कि नहीं वो कंफर्म करना, कि टैली नहीं हुआ है। क्वेश्चन 18 टैली हुआ, हाँ तो सही रहेगा। अरे कितने लोग ने क्वेश्चन 18 सॉल्व किया है? हाँ अभी ये सब लोग ने किया है, सब लोग अपना अपना टैली अमाउंट बोलो, सबका सेम रहेगा तो ऑब्वियसली करेक्ट रहेगा। हाँ तो आज टैली का अमाउंट बोलो। व्हाट इज द मेजोरिटी आंसर? एक मिनट, उसका आंसर क्या? 35,487। हाँ तो मेजोरिटी विंस। मतलब मुझे आंसर याद नहीं है, वही होगा। मैं डाल दूंगा सोल्यूशन, बोल रहा हूं मैं आपको। अभी इसके ऊपर मैं क्या करूं बोलो आप? मैं कल के टेस्ट का जो सम था, ऑब्वियसली आप दो इफेक्ट दोगे तो टैली तो होगा ही ना यार। सोल्यूशन में चेक किया तो सोल्यूशन में मिस्टेक नहीं है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तो सोल्यूशन भेजा वो सही है, तो तेरा रॉन्ग रहेगा। नो, कॉलम इनर फॉर्म में। ओके, हम लोग ने साथ में पढ़ा है ना कॉलम फॉर्म, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। हाँ ओके, कंबाइन मतलब दोनों कॉलम कंबाइन करके बनाया। वो छोड़ो, टैली हुआ क्या सब? नहीं ना, तो फिर खत्म हो गया। फिर कैश अलग बना, बैंक अलग बना, उससे क्या? अगर मार्क्स दोगे मतलब तुमको लगता है मैं पेपर चेक कर रहा हूँ? ये लोग को परवड़ेगा नहीं, मैं पेपर चेक करेगा। मतलब तुम लोग लेके आना पेपर, वी विल डिस्कस इफ यू वांट, बट राइट नाउ आई डोंट थिंक। पहले पेपर चेक होने दो, तुम्हारा अपना अपना। क्या क्वेश्चन पेपर है किसी के पास? तो कोई बताएगा मुझे। हाँ तो मैंने नींद में बनाया रहेगा। कुछ तो मिस्टेक रहेगा क्वेश्चन में। क्या नहीं है?
अच्छा, मैम इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेल यू कि उसमें मिस्टेक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2 में तो सिंपल है. क्वेश्चन 2 में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना है, तो गलत है. अरे स्टॉक दिया है, बैड डेट्स दिया है, क्रेडिटर पर्सनल एक्सपेंसेस. क्या नहीं, गलत है, रॉन्ग, 0. क्वेश्चन रॉन्ग मतलब उसमें रिक्वायरमेंट पार्ट नहीं लिखा है. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाने का था. ठीक है, ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन. मतलब ग्रेस मतलब 1-2 मार्क दे देंगे हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रेडिंग अकाउंट डिलीवर. अरे 1 मिनट, मैंने सोल्यूशन भेजा है ना तुमको, तो उसमें चेक करो ना क्या कर रहा है. 0. तेरा क्वेश्चन 2 टैली हुआ है, एट करेक्ट अमाउंट. हाँ तो पूरा 10 मार्क मिलेगा, सिंपल है. क्वेश्चन 2 में तो जो भी मार्क्स कटेगा वो कटेगा. वो तो डिपेंडिंग अपॉन कितना पोस्ट है. ट्रेडिंग अकाउंट टैली नहीं था, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना कोई 620 रुपए का ग्रॉस पर. 0. ये 2-3 मार्क दे देंगे अभी अटेम्प्ट करने का. क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन क्वेश्चन में से पूछा था मैं. क्वेश्चन 3A वाज आस्क्ड इन सितंबर 24, 5 मार्क के लिए. अमाउंट ऑफ बैड डेट्स ढूंढने का था खाली उसमें. और क्वेश्चन नंबर 3B जो है वो तो हमने क्लास में ही सॉल्व किया था. 3B क्लास में सॉल्व किया था. दिस वाज आस्क्ड इन जनवरी 25 एग्जामिनेशन, अब भी लेटेस्ट. तो 2 क्वेश्चन तो मैंने एग्जाम का ही पूछ लिया था. क्वेश्चन 3 दोनों 10 मार्क. कितने लोगों ने टेस्ट दिया ही नहीं? मुंह पे ही दिख रहा है उसके. वेरी बैड. चलो, आज का टेस्ट के लिए तुमने पढ़ाई किया है ना? अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या टफ बनाएंगे अभी बना बना के. वो सेकंड क्वेश्चन तो मैंने बनाया है, मतलब किधर से तो ढूंढ के बनाया है मैंने उसको. डिपेंड्स. आई डोंट वांट टू से यस ऑल्सो एंड नो ऑल्सो. डिपेंड्स वो लोगों को कितने लोगों को पास करना है. अगर वो लोग को 11% रिजल्ट चाहिए तो नहीं मिलेगा. डिपेंड्स. मेरे पास एक्चुअली आंसर नहीं है. अगेन आई रिपीट, कितने लोगों को वो लोग को पास करना है. अगर वो लोग को 11% रिजल्ट चाहिए तो 89 लोग को तो कुछ भी बोल के पास फेल करना है. ऐसा नहीं. देखो, मैं जब सीए फाइनल पास हुआ था तभी रिजल्ट 3% था. हाँ, उसमें मैंने पास हुआ था. हाँ, उसमें मैं पास हुआ. नहीं, रैंक नहीं था मेरे को. रैंक क्यों चाहिए? पास हुआ ना इम्पोर्टेंट. अलग अलग ग्रुप से मैं क्लियर हुआ है, दोनों ग्रुप साथ में नहीं दिया था मैंने. हाँ, साथ में देने का ऑफ कोर्स. अबे मैंने सीए फाइनल कोई और एज पे दिया था, तूने सीए फाइनल. मैंने सीए फाइनल दिया था व्हेन आई लेफ्ट स्टडी फॉर 6 इयर्स. उसके बाद मैं वापस उतरा और मैंने सीए फाइनल दिया.
और हमारे टाइम पे रिजल्ट 3% निकलता। नहीं अभी तो बांटते हैं वो लोग, सीए बनाते हैं। नहीं इट इज 10% एवरेज 10%, डिपेंड अपॉन डिमांड सप्लाई। ऊपर डिमांड चाहिए तो बोला ज्यादा जन को पास करो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से रिक्वायरमेंट आता है सीए लोग चाहिए तो ज्यादा पास करेंगे, बिकॉज एवरी ईयर थोड़े सीए भी रिटायर भी तो होते रहेंगे ना। अरे सीए लोगों ने संजीवनी बूटी थोड़ी खाया है। फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो जाओ। मैं अभी भी बोल रहा हूं ये 2 महीना इज वैल्यूएबल, इट इज गोल्ड फॉर योर लाइफ। ये 2 महीना तुम्हारे लाइफ में वापस नहीं आएगा। जो ये 2 महीने में एफर्ट डालोगे वो तुमको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, बट इफ यू डोंट पुट एफर्ट्स इन दिस 2 months यू विल लूज दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ योर करियर। ये 2 महीना अगर अपने मतलब लिटरली अपना टेक्स्ट बुक फिर से पूरा हो जाना चाहिए, वॉल्यूम 3, 4 एंड जो अभी दिया है वो विथ होमवर्क प्रॉब्लम्स। अभी तुम्हारे पास शायद टाइम नहीं रहेगा सब सॉल्व करने का, सो एटलीस्ट यू डू इट ऑन कैलकुलेटर। यू शुड डेवलप एन हैबिट ऑफ डू इट ऑन कैलकुलेटर। 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा आता है, लाइक जनवरी 25 का इन्वेंट्री का क्वेश्चन वाज गुड, नाइस क्वेश्चन इन्वेंट्री का। टू सम एक्सटेंट डेप्रिसिएशन का भी क्वेश्चन वाज गुड, एंड जनवरी अटेम्प्ट का डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन वाज आल्सो नाइस क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन अच्छा था। और ये लगातार 3rd अटेम्प्ट में दे हैव नॉट आस्क्ड पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, तो तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन इज मतलब हाँ यू कैन से मोस्ट लाइकली इंट्यूशनल। सेकेंड इंट्यूशन बीआरएस का वो लोग ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो भी इज ऑन लिस्ट जो वो लोग पूछेंगे। सो ये सब चैप्टर्स में जो बोल रहा हूं डोंट इवन डेयर टू लीव दिस चैप्टर्स। बाकी जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेंट्री में भी लास्ट टाइम वो लोग ने हम लोग ने किया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इन्वेंट्री, वो लीफो फीफो वाले क्वेश्चन किए थे हमने, उस पे पूछा था। तो अभी वो स्टॉक टेकिंग वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वैसा वाला क्वेश्चन आता है, वैसा हो सकता है 5 मार्क का क्वेश्चन है इन्वेंट्री चैप्टर में से। सो ये सब एरियाज आर नॉट टू बी लेफ्ट। या फिर डिसोल्यूशन में पार्टनर इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, गार्नर वर्सेस मुरे और पीसमिल, ये दोनों में से एक आना चाहिए। दिस इज व्हाट इज मोस्ट लाइकली। चलो टेक क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 39। I want you to solve this question at least a requirement part। मतलब नॉर्मल तरीके से आपको प्रिपेयर करना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डू इट ऑन योर ओन। इनफैक्ट स्टेटमेंट भी खुद बनाओ, सब स्टेटमेंट भी खुद से लिखो, मुझे लास्ट में बैंक बैलेंस फाइंड आउट करके दो। दोनों वर्किंग नोट नॉर्मल तरीके से। यू फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू जस्ट राइट डाउन ए। पहले आप लिखो क्वेश्चन नंबर 8 इन द बुक्स ऑफ गोपी। नेक्स्ट लाइन में लिखो ए, BRS, ये रहा ऐसा वाला ए लिखो, उसमें लिखो BRS विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक। व्हाट इज एडजस्टेड कैश बुक एक्सेट्रा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट नाउ यू डिड नॉट वरी अबाउट दैट। You have to prepare bank reconciliation statement in usual manner. Nothing new. Do it entirely yourself. Okay, have you completed question 8 working note? 4th? Huh? Can you tell me first transaction, which book, which side? Cash book, credit side, 6 lakh. Okay. Can you tell me second one? Cash book, debit side, how much? 5,55,000. That is uncommon, correct. Third one is very simple. Which book, which side? Passbook,
क्रेडिट साइड दो आपको अमाउंट्स बताने पड़ेंगे, फॉर डिविडेंड 40,000 and for rent 6 lakh. Both are collected by the bank. Passbook credit side. Fourth one is very simple. चलो next fourth one में which book which side? Passbook debit side 27,000. Insurance premium not yet recorded in cash book. Next one number 5. Payment side is undercasted. Payment side मतलब credit side of cash book. If it is undercasted, it will come on opposite side. So debit side 5,000, cash book debit side. Correct. Number 6. Bank charges 1,500. Passbook debit 1,500. Seventh transaction में be careful. There are 2 transactions in seventh. पहले तो bills payable paid by the bank. चलो ये we have done this. Passbook debit 2 lakhs. And bills receivable discounted with the bank at a cost of rupees 1,000 has been dishonored. Sorry, it's not dishonored. Bills receivable has been discounted. This is good one. Number 7 का जो second transaction है, बोलो which book, which side, how much? 59,000 is correct because bank discount cut करेगा. हाँ तो bill receivable for 60,000 है ना? बिल रिसीवेबल का अमाउंट 60,000 होगा. 59,000 इज अ करेक्ट आंसर. चलो बीआरएस मुझे चाहिए इसका. बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आई वांट. चलो कैन यू टेल मी फाइनल आंसर कितना? 49 lakhs रहेगा. 49 lakhs 60,000. ये क्या है? 40 lakhs 60,000. 49,60,500. This is bank balance as per what? Bank balance as per passbook. 49 lakhs 60,500. Did you get this? Of course, this question is not over because ये question में अभी तक जो तुमने किया है that is bank reconciliation statement, something called as without adjusting the cash book. There is a new area in this particular chapter that is something called as preparation of adjusted cash book. अभी तक जो तुमने किया है प्रैक्टिकल लाइफ में बीआरएस ऐसे बनता ही नहीं है. Whatever you have done till now is waste of time in this chapter. क्योंकि प्रैक्टिकली BRS is not prepared the way that we have prepared till now, till this question. तो प्रैक्टिकली BRS कैसे बनता है? तो प्रैक्टिकली we prepare something called as adjusted cash book and then we prepare bank reconciliation statement. अब वो adjusted cash book क्या है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे. हम लोग ने टोटली, एक मिनट बिफोर यू प्रोसीड, 48 आवर्स प्लान किया था ये 3 चैप्टर के लिए. आई थिंक उसमें से इंक्लूडिंग टुडेस लेक्चर कुछ 30 आवर्स के आसपास हो चुका है. सो अभी 18 आवर्स बाकी था बट वी आर वेल अहेड ऑफ द टाइम. हम लोग ये 3 चैप्टर 42 आवर्स के आसपास खत्म कर देंगे. तो 6 घंटा हम अर्ली खत्म करने वाले. 2 लेक्चर बच जाएगा.